আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম ব্যবসায়িক শহর ভুটান সীমান্ত লাগোয়া জয়গাঁও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্যবসায়ীদের দাবি জয়গাঁতে ভুটানি নোটের এক্সচেঞ্জ কাউন্টারের ভুটান সীমান্ত জয়গা ও তার আশেপাশে এলাকায় ব্যবসা হয় মূলত ভুটানি টাকায়। ভুটানের নাগরিকরা জয়গাঁতে এসে জিনিসপত্র ক্রয় করে ভুটানি টাকায়। অপরদিকে এই এলাকার প্রচুর মানুষ জয়গাতে কাজ করে, এছাড়া প্রতিদিন প্রায় হাজারের বেশি শ্রমিক জয়গাতে কাজ করতে যায়, তাদের ভুটানি টাকায় পেমেন্ট করা হয়। এক্সচেঞ্জ কাউন্টার না থাকায় ব্যবসায়ীদের এবং ভুটানে কাজ করতে যাওয়া মানুষদের খুবই সমস্যা পোহাতে হয়। লকডাউনের পূর্বে জয়গা এলাকার ব্যবসায়ীদের ভুটান ব্যাংক থেকে ড্রাফট দেওয়া হতো ভুটানি টাকা জমা রেখে, কিন্তু এখন বর্তমানে সেই ড্রাফট পরিষেবা বন্ধ আছে। আর এর ফলে বর্তমানে সমস্যায় পড়েছে ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে জয়গাতে কিছু লোক 5% অথবা 4% বাট্টা রেখে ভুটানি টাকা এক্সচেঞ্জ করে ইন্ডিয়া টাকা করছে, কিন্তু এই বাট্টা করা শতাংশ সবসময় এক থাকে না, কোনো সময় বেড়ে যায়, কোনো সময় কম থাকে। এটি অফিসিয়ালিভাবে হয় না। এলাকার ব্যবসায়ীদের দাবি অফিসিয়ালি এক্সচেঞ্জ কাউন্টার হোক অথবা পূর্বের মতো ভুটান ব্যাংক থেকে ড্রাফটের সুবিধা দেওয়া হোক, এতে সবার সুবিধা হবে। এ বিষয়ে চেম্বার্স অফ কমার্স সম্পাদক রাকেশ পান্ডে জানান, জয়গাতে শীঘ্রই এক্সচেঞ্জ কাউন্টার হওয়া খুবই প্রয়োজন। এ বিষয়ে জয়গা এলাকার ব্যবসায়ী ও তৃণমূল নেতা মনোজ ঘাতানি জানান, সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়েছে যারা ভুটানে যায় কাজ করতে, তাদের সেখানে ভুটানি টাকায় বেতন দেওয়া হয় এবং সেই টাকা জয়গাতে এসে 4%, কোনো সময় 5% বাট্টা দিয়ে ইন্ডিয়া নোট করতে হয়। তিনি জানান, আলিপুরদুয়ার সাংসদ ও কেন্দ্রমন্ত্রী জন বার্লা আশ্বাস দিয়েছিল এই সমস্যা সমাধানে তিনি উদ্যোগী হবেন, কিন্তু সাংসদ কিছুই করেননি। যদিও এই বিষয়ে কেন্দ্রমন্ত্রী জন বার্লা জানান, আমার কাছে আসেনি জয়গা এলাকার ব্যবসায়ীরা এই সমস্যা নিয়ে, আমাকে জানালে আমি অবশ্য সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হব। ওরা বাট্টা দিতে হচ্ছে 5%, 4%, ব্যবসায়ীদের সমস্যা, শ্রমিকদের কিন্তু সমস্যা। এই সমস্যাটা তো আমার কাছে আসতে হবে। এর আগেবার যে সমস্যা আমার কাছে আসছে আমি তো জানি না, আর ওইখানে আমাদের যারা সমস্যা এটা হচ্ছে, তো ওই সমস্যাটা তো আমাদেরকে বলতে হবে, তাহলে তো আমি জায়গাটা বলতে হবে। আর এখন ওরা কিছু না দিলে আমি কি দিয়ে লড়াই করব? আমাকে তো তথ্য লাগবে, ওই তথ্য নিয়ে আমি লড়াই করব। কার সাথে কোন জায়গা যাইতে হবে ওটা নিশ্চয়ই যাবে। যেভাবে আগামী তার আগে এই কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল, সমস্যা ছিল, বা গেট খুলছে না, এটা নিয়ে আমরা অনেক ওইখানে ভুটান সাথে কথা বলেছি, এমবিসির সাথে কথা বলেছি, মিনিস্টার সাথে কথা বলেছি। এটা কথা বলার পরে এখন সলভ হয়েছে। আর যদি এখনও সমস্যা মানুষের আছে জয়গাঁও মধ্যে, এরকম সমস্যা আছে, নিশ্চয়ই ওনাদের যদি কিভাবে সমস্যা ঝেলছে এটা তো আমাদেরকে বলতে হবে। নিশ্চয়ই আসলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্যাটা सॉल्व करूँगा। थैंक यू। आप नहीं मिल रहा है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को झेलना पड़ रहा है? नमस्कार। पिछले कोविड में हम लोग का जो भूटान के द्वारा आरटीजीएस और ये दिया गया था ड्राफ्ट, वो काफ़ी दिनों हो गया। उसके लिए हम लोग निवेदन भी किए हैं भूटान गवर्नमेंट से और थ्रू इंडिया एम्बेसी के थ्रू से, ये उसको ड्राफ्ट दिया जाए, आरटीजीएस दिया जाए, कोई उपाय किया जाए। लेकिन अभी तक हम लोग का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। तो पुनः हम आपका मीडिया के माध्यम से निवेदन करेंगे भूटान सरकार को, इंडिया सरकार को, इस मुद्दा को ध्यान में रखते हुए और हमारे बिजनेसमैन को, इस क्षेत्र के जनता जनार्दन को समस्या को देखते हुए इसका तुरंत निदान निकाला जाए। या तो एक्सचेंज काउंटर किया जाए या भूटान के द्वारा पहले जैसे होता था वैसे आरटीजीएस दिया जाए, ड्राफ्ट दिया जाए और सबको बराबर वैल्यू दिया जाए, भूटान इंडिया का बराबर वैल्यू दिया जाए, ताकि हम लोग का बिजनेस व्यापार भी बढ़िया से चले, हम लोग का फ्रेंडशिप, इंडिया भूटान का फ्रेंडशिप बना रहे, रिलेशन बना रहे और सब आदमी खुशी खुशी से बिजनेस कर सके। यहाँ पर जयगांव में व्यवसाय मैक्सिमम कितना % आपका भूटान नोट से होता है? यहाँ तो देखिए इंडिया भूटान बॉर्डर टाउन है और बॉर्डर टाउन में तो ज़्यादातर हम लोग शुरू से ही भूटान नोट ही चलता है। यहाँ पे आईसीबीसी का कोई समस्या ही नहीं था और आज भी समस्या नहीं है। अगर भूटान गवर्नमेंट हम लोग को ड्राफ्ट दे दे, आरटीजीएस दे दे, तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे बीसी से ही हम लोग का होता है। कोई इस तरह का ये नहीं है कि हमको आईसी चाहिए, सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं बीसी और भूटान के लोग भी बीसी लेके आते हैं, बिजनेस खुशी खुशी करते हैं। तो अभी जो अडॉप्ट नहीं हो रहा है, अभी आप लोग को तो इंडिया बीसी को इंडिया करने के लिए चार्जेस वगैरह देना पड़ रहा है क्या? अभी देखिए चूँकि
जितना यहाँ काउंटर सेल है, जो लोकल सेल है, हमारे छोटे छोटे बिजनेस है, अभी जो बड़ा एक्सपोर्ट जो होता है उसका तो थ्रू आपका कस्टम बिल जाता है, उसका RTGS आ जाता है। लेकिन छोटा छोटा जो रिटेल सेल है उसका हम लोग का तो कोई एक्सचेंज करने का उपाय है नहीं, तो जिसके चलते इधर उधर से छोटे छोटे लोग हैं जो उसको सुविधा देते हैं, जैसे पान दुकान वाले या कोई लोग हैं तो इलीगली है, तो एक्सचेंज करते हैं, देते हैं। उनको भी धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि वो कम से कम इतना तो काम करते हैं। आज किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है और वो बीमार है, 50,000 रुपया हमारे पास पड़ा है, हटाक से बीमार हो गया, तो भूटान नोट तो अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में चलेगा नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज दे के IC करा के मजबूरी में जाते हैं। कितना % अभी चल रहा है मार्केट में? अभी मार्केट का तो कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी 3%, 4%, 5% ऐसे चलता है। पास तो चलता है। हाँ, इतना चलता है। इससे तो आप लोग का व्यवसाय में तो थोड़ा लॉस का सम्मुखीन हो रहा है। नुकसान तो है ही है। देखिए, इसके लिए तो हम लोग बार बार निवेदन करते हैं अपना इंडिया सरकार से भी, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग बार बार निवेदन किए हैं। RBI को भी हम लोग बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा लेटर दिए हैं, विदेश मंत्रालय को भी लेटर दिए हैं, जो इसके लिए प्रॉपर कुछ व्यवस्था किया जाए, यहाँ पे कोई एक्सचेंज काउंटर बनाया जाए जिससे समस्या का समाधान हो। और भूटान गवर्नमेंट को भी हम लोग बार बार निवेदन किए हैं, BCCI के माध्यम से या इंडिया एम्बेसी के माध्यम से, CG सर के माध्यम से हम लोग निवेदन बार बार करते हैं, तो इसका प्रॉपर कोई उपाय निकाला जाए, या तो ड्राफ्ट दिया जाए, RTGS दिया जाए, कम से कम डेली ना सही तो हफ्ता में 2 दिन कर दिया जाए, महीना में 2 दिन कर दिया जाए, ताकि जो कंटिन्यू है, जो लोगों का लोकल सेल जो है वो जाके अपना ड्राफ्ट बना ले, एक्सचेंज कर ले, RTGS कर ले, कुछ तो सुविधा मिले। ऐसा हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला समय में इस बात को गंभीरता से भूटान सरकार भी लेगा और इंडिया गवर्नमेंट भी लेगा और इसका जल्द से जल्द समाधान निकलेगा। गाँव हार्डवेयर एसोसिएशन के पहल से मतलब क्या है कि ये लोग ड्राफ्ट करवा देते थे, लेकिन क्या है, आफ्टर द लॉकडाउन कम्स, लॉकडाउन के बाद में क्या है कि जो ड्राफ्ट होता था भूटान सरकार की तरफ से वह होना बंद हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे यहाँ के जितने भी जो मजदूर हैं, जो भूटान में कार्यरत हैं या भूटान में काम करने के लिए जाते हैं, वो भी भूटान में काम करके भूटानी करेंसी वापस अपने घर को लेके आते हैं। और ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि सारा करेंसी जो है मार्केट में आता है, और मार्केट आने से क्या है कि जो एक छोटा जो मजदूर है उसको भी नुकसान है और दुकानदार को भी नुकसान है। नुकसान इन द सेंस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आज हाट बाज़ार में जाइए, आप हाट बाज़ार में जाइए, आप इंडियन करेंसी दीजिए, भूटान करेंसी दीजिए, रेट एक ही है। आज आप जयगांव मार्केट में चला जाइए, जूता खरीदिए, चप्पल खरीदिए, कपड़ा खरीदिए या मिठाई खरीदिए, सब टोटल भूटान करेंसी से आपको उपलब्ध मिलेगा। और ये वेरिएशन डिफरेंसेस ऐसा है कि आज यही सामान अगर आप हासीमारा में खरीदते हैं या आपका अलीपुरद्वार में खरीदते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको 5 से 7% का फ़र्क मिलेगा आपको। तो इससे क्या है कि एक आज छोटा से छोटा जो आदमी जो फुटपाथ पे दुकान कर रहे हैं उसको भी तकलीफ, वो भी तकलीफ में जी रहा है, और हमारे जो भाई जो व्यापार, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे केंद्र सरकार को कि वह इस चीज़ के लिए पहल उठाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जयगांव, जिसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है, जिसको ये भी कहा जाता है कि वह भारत का आखिरी गांव, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सुंदर ये जो हमारा जयगांव है, लेकिन यहाँ जो ये भूटान करेंसी का जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं केंद्र के यहाँ हमारे राज्य मंत्री भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपा करके इस समस्या का आप लोग समाधान कीजिए, क्योंकि ये समाधान जो है काफ़ी गंभीर है। आज केंद्र इसके लिए कुछ नहीं कर रहा, इसी कारण आज ये जो समस्या है जटिल की जटिल खड़ी है। और मैं पुनः एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, ताकि क्या हमारी जो जयगांव की जो जनता, इस क्षेत्र की जनता है, वह उत्तीर्ण हो और इस समस्या से दूर हो। अभी जैसा आपको पता है कि आज हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं श्रीमान हमारे जॉन बारला जी हैं, जो यहाँ से यहाँ के MP भी हैं, और उनको एक मंत्री पद भी दिया गया है। और 2019 में भी वो आए थे और उन्होंने हमें जयगांव वासियों को एक कमिटमेंट दिया था कि हम इसका समाधान जल्द से जल्द करेंगे। और मैं ये जो ICBC वाली बात है, ये मैं केंद्र में जल्द से जल्द इसका
केंद्र सरकार से काम करवाऊंगा, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। आज भी हमारी जो जनता है इसी आस में बैठी है कि कब मंत्री जी इस समाधान का हल करें और जयगांव की जनता जो है ये आईसीबीसी की जो जटिल समस्या है उससे समाधान, लेकिन अभी तक वर्तमान जो है ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैं आपके चैनल से यह अनुरोध करना चाहूँगा हमारे माननीय सांसद साहब से कि वह इस समस्या, ये जो जटिल समस्या जो आईसीबीसी की, इस समस्या को देखें ताकि हमारे जयगांव के वासी उभर के आएं। धन्यवाद। अच्छा, ये आईसीबीसी के चलते सिर्फ व्यापारी ना, यहाँ का पब्लिक भी समस्या में है। देखिए, सबसे ज़्यादा पीड़ित तो यहाँ के पब्लिक है। आज ये पब्लिक जो है भूटान में काम करने जाते हैं और भूटान से जो उनको जो धन अर्जित होता है वो भूटान करेंसी होता है, और वो भूटान करेंसी वो मार्केट में लेके आते हैं और मार्केट से उसी करेंसी को वही 1 रुपये का सामान जो है उनको 1 रुपया 98 में या 1 रुपया 40 पैसा में खरीदना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा तो तकलीफ तो हमारे आम नागरिक को है, और दुकानदार तो देखिए ऐसे ही पीड़ित है, क्योंकि अगर आप मुझसे सामान खरीदेंगे, मैं 1 रुपया में लाऊंगा और वही सामान मैं 1 रुपया 4 आना में बेचूंगा, लेकिन क्या है कि अगर उसको मुझे बीसी मिलता है तो वापस तो सामान तो ख़त्म हो जाएगा, मुझे तो वापस उसको आईसी में कन्वर्ट करवा के मुझे सामान लाना ही पड़ेगा। तो देखा जाए तो इसमें तकलीफ दोनों को ही है, हमारे दुकानदार को भी और प्लस हमारे कस्टमर को। अच्छा, व्यापारी लोग को भी अभी आईसी करने चार्जेस देना पड़ रहा है? 100% देना पड़ रहा है। कितना चल रहा है मार्केट में अभी? देखिए, अभी ये जो अपग्रेड ये छोटा कम बेसी होते रहता है, कभी